Hello students, we have already discussed major groups of microorganisms, friendly microorganisms and harmful microorganisms. Today we are going to discuss about preservation of food, nitrogen cycle and nitrogen fixation. Preservation of food. We should preserve food for our future use. Generally some foods are seasonal and we have to use it for whole year, so we have to preserve it in a secure method so that we can use it in future. Then generally microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. Hence food items should be preserved properly. The process in which the food materials are given a suitable physical or chemical treatment to prevent their spoilage is called food preservation. फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट देके हम लोग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करेंगे और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ प्रिवेंट करने से हमारा फूड जो है साल भर या उससे भी ज़्यादा तक प्रिजर्व होके रह पाएगा. It can be done in several ways. In chemical methods, salts and edible oils are common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Hence, these are called preservatives. Preservatives क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को ब्रेक करता है उसको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स का प्रिजर्वेटिव होता है. एसिड्स आर आल्सो एडेड एज प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservatives used in jams and squashes. Preservation by common salt. Common salt is used to preserve fish and meat for ages. पहले जमाने से हम सॉल्ट देके फिश और मीट को लोग प्रिजर्व करके रखते थे उनका फ्यूचर यूज के लिए. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड tamarind etc. Preservation by sugar. Jam, jellies and squashes are preserved by sugar. Sugar क्या करता है? Sugar reduces the moisture content which stops the growth of bacteria and spoil food. Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetable, fish, meat are also preserved by this method. By this method means by using oil and vinegar. Heat and cold treatment. Generally heat kills many organisms and in low temperature it inhibits the growth of microbes. मतलब ब्रेक करता है, ग्रोथ होने में ब्रेक करता है लो टेम्परेचर. सो लुइस पास्चर क्या किए, एक मेथड यूज स्टार्ट किए प्रिजर्विंग फूड के लिए. जनरली ये मिल्क प्रिजर्वेशन में यूज होता है. इन दिस मेथड द मिल्क इज हीटेड to about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and suddenly cooled and stored. This process is pasteurization. This process is suddenly heating and cooling is called pasteurization. The dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent attack of microbes. क्योंकि ऑक्सीजन एयर सप्लाई कम होने से भी माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं होगा माइक्रोब्स का. इसीलिए स्टोरेज जो आजकल हो रहा है वो पूरा एयर टाइट पैकेट्स में हो रहा है. नाइट्रोजन फिक्सेशन. The process of converting nitrogen gas of atmosphere into compounds of nitrogen is called nitrogen fixation. जो नाइट्रोजन गैस एयर एटमॉस्फेयर में आज एयर होता है उसको कैच करके नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. इट इज कैरिड आउट बाय राइजोबियम. राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट का नोड्यूल्स में रहता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. Leguminous plants like peas, beans with which it has a symbiotic relationship. Symbiotic relationship means वो मतलब बैक्टीरिया प्लांट का रूट में रहता है, नोड्यूल्स में रहता है
प्लांट को कुछ हार्म नहीं करता है और प्लांट भी बैक्टीरिया का कुछ हार्म नहीं करता है, लेकिन दोनों दोनों को हेल्प करता है। जैसे कि प्लांट का रूट जो है, नोडल्स जो है, वो बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता है और बैक्टीरिया इन टर्न नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। समटाइम्स नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय लाइटनिंग, सडन लाइटनिंग होने के टाइम में, बारिश का टाइम में, उसी टाइम में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन साइकिल, इसको समझना पड़ेगा। थोड़ा ये चार्ट को भी समझ लीजिए। जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है गैसियस स्टेट में एटमॉस्फेयर में होता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये एक्सेप्ट करके उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और समटाइम्स लाइटनिंग के टाइम में भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है और वो नाइट्रोजन कंपाउंड बनने के बाद बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनियस कंपाउंड। तो बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में चेंज कर देता है। और लाइटनिंग भी बारिश के साथ वो नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में मिलता है और सॉइल में डायरेक्ट मिल जाता है और बैक्टीरिया भी सॉइल में होता है और दोनों को कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में रह जाता है। और उसके वो सॉइल से प्लांट क्या करता है, ऑप्टेक बाय प्लांट, प्लांट इसको लेता है अपना ग्रोथ के लिए। और प्लांट को जनरली एनिमल खाते हैं, एनिमल खाते हैं। और एनिमल, हर एनिमल भी प्लांट खाते हैं और कुछ एनिमल्स को एनिमल भी खाते हैं। तो नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो प्लांट में प्लांट में पहुंच जाता है, प्लांट का नाइट्रोजन कंपाउंड को एनिमल ले लेता है और एनिमल नाइट्रोजनियस कंपाउंड बना देता है। और उसके बाद प्लांट हो या एनिमल हो एक्सक्रीट करते हैं। नहीं तो उनका जब डेथ हो जाता है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होता है, डेथ होने के बाद डिकम्पोज होता है। सर्टेन बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल में जो होते हैं वो सॉइल में नाइट्रोजनियस कंपाउंड को कन्वर्ट करके सॉइल को दे देते हैं, फिर उसको प्लांट लेने के लिए। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। ये जो बैक्टीरिया करते हैं ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस सीधा जाके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मिल जाता है। ऐसे ही एक साइकिल नेचर में ऐसे ही नाइट्रोजन का साइकिल चलता रहता है, ऊपर नीचे होके चलता रहता है। द एटमॉस्फेयर contains nitrogen gas. The nitrogen fixing bacteria present in the soil and root nodules of the leguminous plants fix the nitrogen gas from the atmosphere, and lightning also fix the nitrogen. The plants take compounds of nitrogen from the soil for their growth. The plants are eaten up by the animals as food. Animals convert plant proteins into animal proteins. When plant and animal dies or animal excretes, the complex compounds of nitrogen decomposed by the bacteria present in the soil to be used by the plants again, and certain other bacteria converts part of them into nitrogen gas. This nitrogen gas goes back to the atmosphere. लास्ट स्लाइड में मैं जो बोला था ग्राफिकली वो इधर एलाबोरेट किया गया है। As a result of nitrogen cycle in nature, the percentage of nitrogen gas in the atmosphere remains constant. ये कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन साइकिल। थैंक यू। ये सब नोट बच्चों लिख लेना अपना कॉपी में, और क्वेश्चन आंसर ये टेक्स्ट का, ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।